chairs because I'm not a studio preacher. So I decided to be here only. At least I can, see all of you on the screen, and I know that you all are there. So I decided to be at home only. मैंने सोचा था कि मैं चर्च जाके प्रचार कर लूंगा और अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वो क्योंकि सारी खाली कुर्सियां को कैसे प्रचार करेंगे, तो मैंने सोचा कि जूम पे ही ठीक रहेगा. I'm reminded of a pastor who joined a new church as a pastor. एक पासवान थे जिन्होंने एक नए कलीसिया में अपना कार्य सेवा शुरू करी. And so it was the first Sunday, and he reached there on time, before time, and then he asked one of the elders that how long can I preach. एक पासवान जो नए थे, एक कलीसिया उन्होंने ज्वाइन किया और वहां जाकर उन्होंने एक एल्डर से पूछा कि मैं कितनी देर तक प्रचार कर सकता हूँ, how long can I preach. So the elder said, well, you can preach as long as you want, but we will leave at 11:30. आप जितना लंबा चाहे प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हम 11:30 बजे यहाँ से चले जाएंगे. Now, since today is Good Friday and the message might be little longer. आज Good Friday है, हो सकता है आज का संदेश थोड़ा सा लंबा हो. It's longer because the translation actually it gets doubled. But I know that you will not leave. First, you're already at your homes, in your homes, and I know that you all are very, very good listeners, and on the special day you will give your time. मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग आज समय जो है वो विशेष आज की विशेष सभा में और विशेष संदेश पर आप अपना समय देंगे. I promise you I will keep it as short as possible. The reason I'm saying is I want to capture the 7 words that Jesus spoke from the cross. मैं आज बात करना चाहूंगा संक्षेप में, इन शॉर्ट, यीशु मसीह ने जो सात वाणियां या 7 बातें जो यीशु मसीह ने कही थी क्रूस पर से, मैं उनको आपके सामने रखना चाहूंगा. Usually it is done in a 3-hour service. I've done that earlier in different other churches when I was called as a guest preacher. That was a 12 to 3 service. But please don't be afraid. It will not be a 3-hour service. It will be short. 3 घंटे की सर्विस में इसको लिया जाता है, but I'll keep it short. And we want to focus on the words of Jesus this morning, what he spoke from the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पर से क्या कहा अपने उन अंतिम क्षणों में, इन पे हम ध्यान लगाना चाहेंगे. It is in biblical history, Good Friday is such an overwhelming, eventful day. It is a difficult task for the preacher to decide on which aspect of that day to preach. उस दिन इतना ज्यादा हुआ और इतनी बातें हुई उस दिन. We are talking about right from the midnight. रात के 12-1 बजे से गतसेमनी के बाग में पकड़ाए जाने से लेकर के जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, lot of things happened, and it is just so difficult to pick one aspect, and that is the difficulty of every preacher, I believe. रात के मध्य रात्रि से लेकर के अगले दिन तक दोपहर तक जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए, जो बातें हुई उनमें उस पर बोलना बहुत कठिन है. But this morning I want to draw your attention to the 7 words of Jesus that he spoke from the cross. We can picturize the scene where he is on the cross. He is in excruciating pain. He is actually bleeding to death. हम अपने दिमाग में इस तस्वीर को रख सकते हैं कि वो क्रूस पर है यीशु मसीह, और बहुत ज्यादा तकलीफ में है, कष्ट में है, और धीरे धीरे खून बहने से धीरे धीरे वो मृत्यु उसकी हो रही है. He is dying a slow death on the cross. And in these moments of physical pain, mental agony, loneliness, betrayal, shame, Jesus speaks these last 7 words, statements. ये जो अवसर था जहाँ पे उसको शारीरिक रूप से बहुत तकलीफ थी, मानसिक रूप से बहुत तनाव था, अकेलापन था, और उसके साथ धोखा हुआ था, और एक शर्मनाक स्थिति में उसको क्रूस पर लटकाया गया था. और उस परिस्थिति में भी उसने ये 7 बातें जो कही, और उस पे हम ध्यान देना चाहेंगे. And as we do that, we will also look at the scriptures concerning that aspect. और जब हम ऐसा करेंगे
तो हम फिर जो वचन में जो लिखा हुआ है वो भी हम ध्यान से देखेंगे. So the first thing that Jesus said from the cross was, Father, forgive them, for they know not what they do. Luke 23:34. Luke 23:34. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. हिंदी में पढ़ दीजिए. लूका 23:34. तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं. और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए. The first words from the cross is forgiveness. क्रूस पर से पहली बात जो यीशु के मुख से निकली वो थी क्षमा, forgiveness. And why not? क्यों नहीं? The cross means forgiveness. क्रूस का मतलब ही है क्षमा, क्षमा करना, क्षमा प्राप्त करना. Why not? Now the question is, what did the people not know? Because Jesus says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. The question is, what did the people not know? सवाल ये उठता है कि लोगों को कौन सी बात यहाँ पर नहीं मालूम थी. Well, Jesus quoted enough scriptures to show that he is the Son of God, and he did enough miracles and enough teachings to show that he is divine. उसने इतना ज्यादा वचन में से बार बार बताया, उसने अपने बारे में बताया, उसने इतने आश्चर्य कर्म किए, ये सब दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर है. But the people were so full of their own notions and their own ideas of the Messiah that they missed out completely to recognize who Jesus was. लोग अपने ही विचारों से इतने भरे हुए थे, वो खुद क्या विश्वास करते थे, इतने भरे हुए थे कि वो इस बात को देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि यीशु मसीह वास्तव में कौन थे. They were not able to experience the grace of God because of their unbelief. अपने अविश्वास की वजह से वो यीशु मसीह के अनुग्रह को नहीं अनुभव करने पाए. You know, often people say, I can't forgive, and I have been hurt so bad, I will never forgive. कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है कि मैं तो क्षमा नहीं कर सकता, मुझे इतनी चोट पहुंची है और मैं कैसे माफ करूं किसी को, मैं नहीं कर सकता. In Ephesians 4:32, Paul says, forgive as the Lord forgave you. Forgive as the Lord forgave you. You know, the Lord has forgiven our sinful nature on the cross, and we must understand and experience that. प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जो पापी स्वभाव है उसको क्रूस पे जा करके क्षमा किया है, और इस बात को हमें समझना है और इस बात का हमको अनुभव करना है. Once Peter asked, Lord, how many times should we forgive? पतरस ने एक बार पूछा यीशु मसीह से इससे पहले कि प्रभु कितनी बार क्षमा करना चाहिए, क्या 7 बार, 7 times? You know, the Jewish rabbis, they taught 3 times. जो यहूदी जो शिक्षक थे वो कहते थे 3 बार क्षमा करना काफी है. Peter asked, is 7 times enough? क्या 7 बार काफी है? Jesus said, you forgive 70 times 7. यीशु मसीह ने कहा 70 बार 7 को गुना करके, which meant unlimited. And so the Lord offers his forgiveness to us, which is unlimited, and he also expects us to be forgiving to others unlimited. प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों को गिनती नहीं करी, लेकिन हमें क्षमा प्रदान करी है क्रूस पर से, और वही अपेक्षा वो हमसे भी करता है कि हम भी औरों को अनलिमिटेड, बिना गिनती के औरों को भी क्षमा करना सीखें. The next time you get hurt or you are unable to get over, something bad, look at Jesus hanging on the cross. अगली बार जब आपको किसी बात से चोट लगे, किसी बात से तकलीफ है, कोई ऐसी बात जो बहुत आपको गहराई से आप पे चोट लगी है और आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं,
तो आप यीशु मसीह जो क्रूस पे लटका हुआ है उसको देखें एंड सी हाउ ही फॉरगेव यू एंड मी, कैसे उसने आपको और मुझे क्षमा किया है। एंड ऑल्सो इफ यू हैव बीन गिल्टी ऑफ समथिंग देन लुक टू जीसस फॉर फॉरगिवनेस। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो गलत है, जो हम अंदर ही अंदर रखे हुए हैं, किसी से नहीं बता सकते, सो लुक टू जीसस ऑन द क्रॉस हु फॉरगिव्स। यीशु मसीह जो क्रूस पर है उसको हम देख सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं जो हमें क्षमा करता है। The second thing that is said from the cross, Luke 23:43. Luke 23:43. Jesus said, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Truly I say to you, today you will be with me in paradise." हिंदी में पढ़ दीजिए। ल्यूक 23:43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। Now Jesus was deliberately hung between two thieves. दो चोरों के बीच में जानबूझकर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, टू इंक्रीज द शेम, टू शो द पीपल दैट ही इज जस्ट लाइक द क्रिमिनल्स, ताकि लोग ये देखने पाए कि यीशु मसीह भी इन्हीं चोर उचक्कों डाकुओं की तरह है, इसलिए जानबूझकर उसको उन दो चोरों के बीच में क्रूस पे लटकाया गया था। बट द प्रेजेंस ऑफ जीसस in the gallows over there was overwhelming for one thief. वो जो मृत्यु की जगह थी, वहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति एक चोर के लिए एक अलग माहौल बना, एक चोर के लिए। There was a strange belief, a hope that filled the heart of this one thief. ये एक जो डाकू था, उसके दिल में एक अद्भुत विश्वास, एक अद्भुत जागरूकता उसके दिल में आ गई। You know, a disappointed man makes a final attempt for his life. Of course, he knows that he cannot come down from the cross. The thief knew that there was no way, and he also knew that Jesus also cannot come down. I mean, under the circumstances, he will not. Most probably, he will not come down from the cross. जो चोर था उसको ये मालूम था कि मैं तो क्रूस से नहीं उतर सकता, और यीशु मसीह भी शायद जिस हालात में है उससे नीचे नहीं उतर सकते। So what did he do? What did he do? He told Jesus, he told the other thief, well, this we are here because of the sins we have done, but this man has done nothing. And he says, the Lord, please remember me, मुझे याद रखिएगा। I'm not reading the whole thing because we know that instance. उसने दूसरे चोर से कहा कि हम तो यहाँ इसलिए हैं क्योंकि जो हमने गलत काम किए हैं, लेकिन ये व्यक्ति ने तो कुछ भी नहीं किया है, ये निष्पाप है, प्रभु मुझे अपने राज्य में याद रखिएगा। Did Jesus disappoint the thief? No. क्या यीशु मसीह ने उस चोर को निराश किया उस परिस्थिति में? नहीं। This man deserved a death penalty. ये जो चोर था, जो वहां के नियम थे उसके हिसाब से इसको मृत्यु दंड निर्धारित था। The human law rightly punishes such criminals. जो हमारे कायदे कानून है वो ऐसे लोगों को, ऐसे चोर उचक्कों को, क्रिमिनल्स को सजा देते हैं। But one cry of repentance has the Lord by your side. एक विनती की गुहार, एक प्रार्थना, परमेश्वर से एक प्रार्थना, एक गुजारिश, और परमेश्वर आपके साथ है। And that is beautiful. One cry of repentance, the Lord is on your side. That is indeed beautiful. बहुत सुंदर बात है। एक प्रार्थना, एक गुजारिश, और परमेश्वर आपके साथ है। No, there was a German philosopher by the name of Friedrich Nietzsche. फ्रेडरिक नीचे के नाम से एक जर्मन दर्शन शास्त्री थे, and he was preparing to go to Bible college, but then his mind all got changed. वो तैयारी कर रहा था बाइबल कॉलेज जाने की अपनी जवानी में, लेकिन फिर उसका सारा दिमाग जो था वो उलट पुलट हो गया। And
when he was on his deathbed, वो मर रहा था, and again people tried to help him to receive the Lord. लोगों ने कोशिश करी कि कम से कम मरते मरते तो ये प्रभु को ग्रहण कर ले, प्रभु को जान ले. You know what he did? He raised his fist towards the heaven and died in that state, in that same state. उसने अपनी बंद मुट्ठी को गुस्से में परमेश्वर की तरफ उठाया और मर गया. And he died unrepented. और बिना पश्चाताप के वो मर गया. Such a contrast to this thief. उसको और अगर इस चोर को हम तुलना करें तो कितना फर्क है. Today also the Lord grants immediate relief to all those who cry out to him. आज भी जितने लोग परमेश्वर के सामने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुरंत उनकी प्रार्थना को सुनता है. The relief may not, change your circumstances immediately. आपकी परिस्थितियां जो है वो उसी वक्त तुरंत शायद ना बदले, but the pain, the disappointment, the rejection that you might be going through, the Lord can grant immediate comfort and immediate peace which no human agency can give. आपकी हो सकता है तुरंत परिस्थिति ना बदले, जबकि वो बदल सकता है. He can and he does, but it is not necessary. जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी परिस्थिति तुरंत बदले. लेकिन वो क्या बदलता है? आपका जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, जिस समस्या से गुजर रहे हैं, और मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से जिस उलझन में आप हैं, उसमें वो तुरंत आपको सांत्वना देता है, आपको शांति देता है, जो कोई और आपको मनुष्य नहीं दे सकता. So let that become a spiritual, exercise. Run to the Lord. ये हमारी एक आत्मिक एक अभ्यास बन जाए कि हमेशा हम परमेश्वर के पास दौड़ें, especially when facing difficult circumstances. विशेष रीति से जब परेशानी आती है तो सीधे परमेश्वर के पास जाएं, and he never lets you down. वो कभी आपको छोड़ता नहीं है. He did not disappoint the thief, although he was a criminal, and he never disappoints us. उसने उस चोर डाकू को निराश नहीं किया और वो हमें भी कभी निराश नहीं करता है. The third thing that he said from the cross, we find this in John 19:26 and 27. यूहन्ना 19:26 और 27. The third thing that Jesus said was this: "Woman, here is your son." And he said to his disciples, "Here is your mother." From that time on, this disciple, that is John, this disciple took her into his home. हिंदी में पढ़ते. जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है. तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है. और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया. Now, in most probability, Joseph, that is Jesus' father, has died. In most probability, because we don't hear about him, we don't see him anywhere. And also, since Jesus is asking the disciple to take care of his mother, the obvious conclusion is that in most probability, Joseph has died. ये ऐसा माना जाता है कि ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है कि यूसुफ जो यीशु का पिता था वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि माता के लिए यीशु जो है वो अपने को जिम्मेदारी दे रहे हैं. Also, if you see in John 7:5, then the brothers of Jesus, his own brothers, did not believe him. John 7:5, you can see that his own brothers did not believe him. उसके अपने भाई भी यीशु पर विश्वास नहीं करते थे. Now it is so remarkable that amidst this excruciating pain and so much of divine purposes is going on in the mind of Jesus, he makes a proper arrangement for his mother. कि इतना तकलीफ से वो गुजर रहा है और इतनी बातें जो उसके दिमाग में चल रही होंगी, कैसे क्या है, इन सब के बीच में वो अपनी माता के लिए एक अच्छा इंतजाम करता है.
इट इज रिमार्केबल, ये बात तारीफ काबिल है, काबिल तारीफ है कि वो अपनी माता का इंतजाम करता है। एंड फॉर जीसस इट वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह के लिए ये बात बहुत आवश्यक थी, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स। इट इज कमिंग फ्रॉम जीसस, कि अपनी माता के लिए इंतजाम करना, अपनी गैर हाजिरी में, अपने ना रहने पर अपनी माँ बाप का इंतजाम करना उसके लिए बहुत आवश्यक था। फ्रेंड्स, टुडेज लाइफ इज फास्ट। आज का जीवन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज वी आर मूविंग टू न्यूक्लियर फैमिलीज। जो पहले संयुक्त रूप से परिवार रहा करते थे, सब लोग बड़े से घर में साथ में, अब ऐसा नहीं है। अब धीमे धीमे हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में अलग अलग रह रहे हैं। ऑल्सो द न्यू जनरेशन इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन अदर सिटीज, इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। दैट्स द वे इट इज नाउ। अलग अलग शहरों में अब नौकरियां मिलती हैं, अलग अलग देश, दूसरे देश भी कभी कभी जाना पड़ता है एक नौकरी के लिए। बट what is the arrangement that we make for the parents? That is the question. कि अगर हम अलग शहर में भी हैं या अलग देश में भी हैं, तो हमने माँ बाप के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या इंतजाम किया है? जीसस मेड दैट अरेंजमेंट। यीशु मसीह ने इंतजाम किया। एंड सो मस्ट दिस जनरेशन ऑल्सो मेक अरेंजमेंट्स फॉर द एल्डरली दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ। कि जो बुजुर्ग लोग हैं, हम रहें ना रहें, हम कहीं और जाएं, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे माँ बाप हैं, उनका ख्याल कैसे रखा जाएगा, इस बात को निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच जीसस इज सेइंग एंड ही डिड फ्रॉम द क्रॉस। ये बात उसने क्रूस से कही और करी भी। एंड लेट अस रिमाइंड आवरसेल्व्स इन वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स, दैट इज एक्सोडस 20:12. Exodus 20:12, the commandment is, and that's the only commandment with a promise. ये एकमात्र आज्ञा है जिसके साथ एक वायदा परमेश्वर ने किया है। किसी और कमांडमेंट के साथ वायदा नहीं है, सिर्फ इसी कमांडमेंट के साथ एक वायदा है। What is the commandment? Honor your father and mother so that you may live long in the land that God is giving. अपने माता पिता का आदर कर ताकि तू लंबे समय तक इस पृथ्वी पर जो प्रभु ने दी है इस जगह पे रहने पर। So my dear friends, let's think about this very deeply. How are we making arrangements for our elderly or for our parents when we are not there especially? The fourth thing, चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से क्या कही? Matthew 27:46, मत्ती 27:46, My God, why have you forsaken me? My God, why have you forsaken me? हिंदी में पढ़ दीजिए। 27 verse 46, 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Now, as we read the Bible, we understand, because we have the full Bible, we understand that there was never a time when this could have been possible. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर पिता ने पुत्र को छोड़ा। But the Lord Jesus is saying that in his spirit, in that pain. So what he must be going through, that's the question. अगर यीशु मसीह को ऐसा कह रहे हैं, अगर उनको ऐसा अनुभव हो रहा है मानो कि पिता ने उन्हें छोड़ दिया है, तो वो किस पीड़ा से, मानसिक पीड़ा से, विशेष रीति से वो गुजर रहे होंगे, ये यहाँ पे सोचने की बात है। You know, we have all felt rejected and forsaken sometime or the other. हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पे हमें ऐसा अनुभव मिला है कि हमारी आवश्यकता नहीं है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड, हमें छोड़ दिया गया है, हमारी किसी को परवाह नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं है। ऐसा अनुभव कभी ना कभी जरूर हमारे जीवन में आया होगा।
and it gives such pain that some people even turn to suicide. और इतनी तकलीफ इस बात से होती है कि कभी कभी कुछ लोग तो आत्महत्या का रास्ता भी अपना लेते हैं. But this pain that we experience is nothing to the pain that Jesus felt that day. लेकिन हमारा जो तकलीफ है, जो हम महसूस करते हैं, ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है जो यीशु मसीह ने उस दिन, उस समय क्रूस पर जिस तकलीफ को सहा. And I'm not talking about the physical pain, that definitely he was going through, but the spiritual agony that he must be going through is unexplainable. शारीरिक पीड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो गुजर ही रहा था उससे, लेकिन मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से जिस पीड़ा से वो गुजर रहा था, वो समझना और समझाना नामुमकिन है. I mean, how does one take upon himself the sins of the whole world? कैसे एक व्यक्ति पूरे संसार का पाप अपने ऊपर लेने पाया? How does one give his life once and for all, sacrifice, to save humanity from their sins? सिर्फ एक बार करना था और उस एक बार में पूरे संसार का पाप अपने ऊपर लेके बलिदान, ये कैसे संभव हुआ? And most of all, how did Jesus, who did not have a consciousness to sin, and this is very difficult to explain in English and Hindi both. It's a theological, teaching. कि यीशु मसीह जिसको पाप का बोध नहीं था, जिसको पाप का ज्ञान नहीं था, who was sinless. The Bible talks about it that Jesus is sinless. जो पाप से रहित था, तो जो व्यक्ति पाप से रहित है, जिसको पाप का बोध नहीं है, जिसको पाप का ज्ञान नहीं है, जो पापी नहीं है, वो व्यक्ति कैसे सारे पापों को अपने ऊपर लेके कैसे खुद बलिदान बना, ये बात हमारे और आपकी समझ के पार है. But the agony that he must be going through is what we need to reflect upon. लेकिन जिस मानसिक तनाव से और पीड़ा से वो गुजर रहा होगा, ये यहाँ पे हमें समझना है. This was the maximum agony that the divine Jesus was experiencing within the confines of humanity. मेरे ख्याल से सबसे अधिकतर पीड़ा इस वक्त यही थी. Again, I'm not talking about the physical pain that was there, but the mental agony that he was going through. शारीरिक दर्द तो था ही, खून तो बह ही रहा था, तकलीफ तो थी, लेकिन जो मानसिक रूप से जो बातों से वो गुजर रहा था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ. Only God himself could have done it and he did it. सिर्फ परमेश्वर ही इस कार्य को कर सकते थे और उन्होंने इस बात को किया. And he did it for you and me. That is important. किसके लिए किया? आपके लिए और मेरे लिए किया. He knows what it is to be abandoned and rejected. वो जानता है कि धोखा प्राप्त करना क्या होता है. वो जानता है कि जब किसी को बिल्कुल छोड़ देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है. He knows what it is to be crushed. कि जब बिल्कुल दबा दिया और पिस जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है. He knows. He knows what it is to be lonely and betrayed. अकेलापन क्या होता है वो जानता है. और बिट्रेल क्या होता है, धोखा क्या होता है, ये वो जानता है. And that is why he is able to help you and me. और इसीलिए वो आपकी और मेरी सहायता कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सारी बातें जो है वो क्या होती है. And therefore, whenever you and I feel rejected, whenever you and I feel crushed, we feel broken, we feel abandoned, we look to Jesus because he felt the same and he overcame it. जब भी हम टूटे हुए महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि हमें छोड़ दिया गया है, हम बिल्कुल पिस चुके हैं,
हमारे लिए कोई आशा नहीं है, तो हम क्रूस पर लटके यीशु को देखते हैं, क्योंकि उसने भी वही अनुभव किया और हमसे बहुत ज्यादा अनुभव किया, और उस पर उसने विजय प्राप्त करी। एंड द सेम विक्ट्री ही गिव्स टू यू एंड मी, और वही विजय वो आपको और मुझे भी देता है। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्टेटमेंट, जो पांचवी बात यीशु ने क्रूस से कही, जॉन 19:28, यूहन्ना 19 का 28। जीसस सेड, आई थर्स्ट, आई थर्स्ट। हिंदी में पढ़ लीजिए। इसके बाद यीशु ने ये कहकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। मैं प्यासा हूं। दिस इज द ओनली टाइम जीसस एक्सप्रेसेस अ पर्सनल नीड। यही एक समय है एकमात्र जहां पर यीशु मसीह ने एक व्यक्तिगत आवश्यकता को व्यक्त किया है, एंड दैट वाज आल्सो डिनाइड, और उस बात को भी मना कर दिया गया। इंस्टेड ही वाज ऑफर्ड सम विनेगर। उसको जो था वो विनेगर एक प्रकार का उसको दिया गया, पानी उसको नहीं दिया गया। एंड यू नो व्हाट, देयर वाज नो अरेंजमेंट that the dying people on the cross would be offered drinks. There was no arrangement, because the point was not to give them drink, and be alive for some more time. The point was that they should die, and die as painful as possible. वहां पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि जो लोग क्रूस पे मर रहे हैं उनको पानी दिया जाए, उनके साथ किया जाए ताकि थोड़ा सा और वो जी ले। नहीं, वहां तो इंतजाम ये था, बात ये थी कि कैसे इनको सबसे ज्यादा तकलीफ मिले और उससे इनकी मृत्यु हो। So most probably it was some soldier who had his own personal, wine, and it was just given to Jesus, but it was not required. Now, the one fact that I want us to notice here is this: often people think that it was all play acting on the cross. कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि जो जो क्रूस पर हो रहा था ये सब एक नाटकीय रूपांतर था, ये ड्रामा था। That in reality he was not in pain because he is God. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई क्योंकि वो तो परमेश्वर था, वो तो सर्वशक्तिशाली है, तो परमेश्वर को तकलीफ कैसे हो सकती है? परमेश्वर को खून तो बह रहा है लेकिन तकलीफ कैसे हो सकती है? कील तो गाड़ी गई हाथ में लेकिन तकलीफ कैसे हो सकती है? खून बह रहा है लेकिन प्यास कैसे? वो तो परमेश्वर है। दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू, because Jesus allowed himself to be subject to the confines of humanity. यीशु मसीह ने अपने आप को इस बात में दे दिया कि जो भी इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी सीमाएं हैं, उन्हीं सीमाओं में यीशु मसीह भी था। This was tangible physical suffering, of which thirst is one element most of us can readily identify with from our own personal experiences. ये दिखती हुई, वास्तव में प्रतीत होती हुई नहीं, वास्तव में दिखती हुई एक ऐसा पीड़ा थी जिससे यीशु गुजर रहा था, और जिसमें से प्यास लगना एक ऐसा बात है जो आप में से हम सब जानते हैं। We have all been thirsty at times, and there have been times when there was no water, and we really had to look for water. And so at least that element, we can little bit try to experience and think about it. And as a human, Jesus was dehydrating. एक मनुष्य के रूप में उसके शरीर से खून और पानी कम हो रहा था, और वो प्यास उसको लग रही थी। And he was dying a slow death. और वो धीरे धीरे अपनी मृत्यु की ओर जा रहा था। For whom was he doing it? For your sake and my sake. किसके लिए वो कर रहा था? आपके लिए और मेरे लिए। It is the same Jesus who said, "Come to me, all those who are thirsty." जो प्यासे लोग हैं
वो मेरे पास आए. He is the one who quenches our spiritual thirst. हमारी जो प्यास है, जो आत्मिक प्यास है, वो ही बुझा सकता है. But he himself remained thirsty that day. लेकिन उस दिन वो खुद प्यासा रहा. Now, before we go to the 6th and 7th statement from the cross, we will listen and sing a song, and then we will go to the 6th and 7th statement. Jesus, keep me near the cross. Jesus, keep me near the cross. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all the healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk from day to day, with its shadows o'er me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. So as Jesus hangs on the cross, he first says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. जब यीशु क्रूस पे लटका हुआ था तो सबसे पहले उसने कहा कि
हे परमेश्वर, इन्हें पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि आज मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। He told that thief, you will be within paradise. And then the third thing that Jesus said was, a woman, this is your son. And then to the disciple he said, here, this is your mother. Then the fourth thing that Jesus said from the cross was, my God, why have you forsaken me? हे परमेश्वर, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And the fifth thing he said from the cross was, I thirst. उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ. And now the last two, the sixth and seventh. The sixth thing that Jesus said from the cross, the statement he made was, it is finished. It is finished. John 19:30. John 19:30 हिंदी में पढ़ लीजिए. जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए. Now the birth and the life and the ministry of the ministry, suffering, the death and resurrection of Jesus was a matter of 33.5 years. प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उसका जीवन, उसकी सेवकाई, जो कष्ट उसने सहा, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान और ये सारी जो बातें थी, ये 33.5 वर्षों की बात हम कर रहे हैं. His ministry was 3.5 years. जो उसकी सेवकाई थी वो 3.5 वर्षों की थी. Now just think of the gospel accounts all put together. So समाचार में जो बातें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान करिए. जो सारी बातें लिखी हुई हैं, each parable, each story, each teaching, each instruction, each miracle, एक बात जो वहां बयान किया गया है, हर दृष्टांत, हर कहानी, हर शिक्षा जो यीशु ने दी, हर एक निर्देश जो यीशु ने दिए, सारे आश्चर्य कर्म जो यीशु ने किए, इन सब बातों को एक मन में थोड़ा सा ध्यान करिए. एंड नाउ दिस फाइनल पैशन वीक, और ये आखिरी जो हफ्ता जिसमें से हम गुजर रहे हैं, Jesus did not have any rehearsals. यीशु मसीह की कोई प्रैक्टिस नहीं थी कि ऐसा जो है हम बार बार करते हैं, हमको मालूम है कि हर बार ऐसे ही करते हैं, तो इस बार भी ऐसे ही करेंगे. There was no rehearsal, there was no practice. He was not used to of doing this again and again. ऐसा नहीं था कि हम तो बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर 5 साल पे आते हैं, तो हमको मालूम है, हमें ना बताइए, हमको मालूम है ये हर बार कैसे होता है. I know exactly how it is. No. The Bible says he came once and for all. एक ही बार प्रभु यीशु मसीह आए और वो पर्याप्त था, वो काफी था. This was to happen only once and it was to happen for all time's sake. ये पूरे समय के लिए इस बात को होना था और एक ही बार होना था. And it had to be perfect. और इस बात को पूर्ण रीति से सिद्ध प्रकार से होना था. It had to be perfect. It had to be in accordance with the scriptures. जो वचन में लिखा गया है, जो भविष्यवाणियां हुई थी, उसके अनुसार भी इसको होना था. And it had to have a redemptive impact for eternity. और ये बात जो आज यहाँ होनी थी, जो बात उस दिन हुई, वो इस प्रकार से होनी थी कि अनंत काल के लिए लोग बचाए जाने पाए. अनंत काल के लिए लोग जो हैं वो अपने गलत रास्ते से, पापमय जीवन से बचा लिए जाएं, इस प्रकार से इस बात को होना था. And Jesus fulfilled all of these in obedience to God the Father. और प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों को, सुसमाचार से लेकर के जितनी बातें सब लिखी हुई हैं, जो आपको ध्यान में आ रहा है, हर एक बात इस क्षण तक यीशु मसीह ने
अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इन सारी बातों को उसने पूरा किया। And again, he did it for you and for me. He did not have to do it. उसको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं, but he did it for you and for me. उसने आपके लिए और मेरे लिए इस कार्य को किया। Never again any more sacrifices will be required. इसके बाद अब कोई और बलिदान की आवश्यकता नहीं है। Never again a prophet will need to be sent. A judge will need to be sent. Never. इसके बाद कोई भी भविष्यवक्ता को जरूरत नहीं है भेजने की, नबी को जरूरत नहीं है भेजने की। Why? Jesus himself came and paid it all and it was finished. यीशु मसीह स्वयं आए और स्वयं उस कार्य को पूरा किया और अब वो खत्म हुआ। Jesus finished the task that he was given. And that is something so marvelous. It is something so marvelous for us who live on this side of history. हम लोग के लिए कितना अद्भुत ये बात है, हम लोग जो इतिहास के इस तरफ रहते हैं, जो यीशु मसीह के बाद हम लोग का जन्म हुआ और हम लोग इन सारी बातों को वचन में पढ़ सकते हैं और पूर्ण रूप से जो भी हुआ उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जितना भी हुआ उन सब बातों को हम समझ सकते हैं और ये सारी बातें हमारे लिए लिख दी गई हैं और ये सारी बातें पूरी हैं। God has done his work, it is finished. And now the question is, what is your response and my response? प्रभु ने अपनी ओर से अपना पूरा कार्य जो उत्पत्ति से शुरू हुआ और पूरा कार्य उसने खत्म किया और अब सवाल हमारे और आपके सामने है कि अब जब ये पूरा काम खत्म हो गया जिसको हम देख रहे हैं, अब हमारी इस पे प्रक्रिया क्या होगी? What is it that you and I are going to do? And therefore the cross always asks for a response. It is not an event that must be admired, appreciated, oh what a wonderful thing that the Lord did. क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि इसको हम बड़ी सराहना करें, तारीफ करें। नो, द क्रॉस डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। जब काम खत्म हो गया, काम पूरा हो गया, प्रभु ने काम पूरा किया, तो अब इस बात को हमसे मांगा जा रहा है। ये परमेश्वर की मांग है, ये परमेश्वर की मांग है कि अब हमारा प्रतिक्रिया क्या हो। सेवेंथ एंड द लास्ट वर्ड, सातवां और अंतिम बात जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कही। फादर, Luke 23:46, Luke 23:46, Father, into your hands I commend my spirit. Father, into your hands I commend my spirit. हिंदी में पढ़िए। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। An important thing that we must notice is that though physically Jesus was a captive and he was helpless, but spiritually he was very much in control of his life. Though physically he was captive, he was helpless physically, but spiritually he was very much in control of his life. शारीरिक रूप से वो बंधुआई में थे, शारीरिक रूप से वो असहाय थे, लेकिन आत्मिक रूप से उनकी आत्मा उनके खुद के नियंत्रण में थी। Now whether it was before Pilate, whether it was before the Jewish leaders, whether it was the crowd, Jesus never gave in. चाहे वो पिलातुस के सामने था, चाहे वो जो यहूदी महायाजक थे या भीड़ थी, यीशु मसीह ने कभी अपना जो अपना विल है, जो अपना जो मत है, जो अपना आंतरिक नियंत्रण है, आत्मा, वो कभी अपने हाथ से नहीं जाने दी। And now on the cross,
though he is physically drained and so close to his death, he still knows who he is and to whom he belongs. अब क्रूस पर जबकि वो शारीरिक रूप से बिल्कुल खत्म है, खात्मे की ओर है, अपनी मृत्यु के इतने नजदीक हैं, लेकिन वो इस बात को जानता है कि वो कौन है और वो किसका है, to whom he belongs. Now remember the temptation, the test of Jesus in the wilderness just before he began the ministry. यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करने से पहले जो यीशु मसीह का जो परीक्षा हुई उस जंगल में वीराने में, उसको ध्यान करिए. From that point till he breathed his last, Jesus displayed absolute allegiance to God the Father. उस समय से लेकर के और जब तक उसने अपनी आखिरी सांस नहीं ले ली, उसने दिखाया कि पूर्ण रूप से वो पिता परमेश्वर का है, पूर्ण रूप से वो पिता परमेश्वर के अधीन है. And that is very important for us to understand. ये बात हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है. We always need to be mindful of the fact that we have a identity in Christ Jesus. हमारी जो पहचान है वो भले ही कोई व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक हो, उसका कुछ भी नाम हो, लेकिन अगर वो मसीह है, मसीह को मानता है, जानता है, तो जो उसकी पहचान है, जो हमारा आधार है, वो प्रभु यीशु मसीह है. Our identity is in the Lord Jesus Christ. We must be mindful of to whom we belong. हमें इस बात को मन में, दिलो दिमाग में एकदम स्पष्ट होना चाहिए, हम किसके हैं, हम कौन हैं, हम किसके हैं. And to whom we must remain faithful to. किसके प्रति हमें हमेशा विश्वास योग्य बने रहना है, ये भी बात हमारे दिलो दिमाग में हमेशा बनी रहे. And after we die, where are we going to go? और जब इस मृत्यु कभी भी अगर मृत्यु आ जाए तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, ये सारी बातें हमारे दिल और दिमाग में बहुत मजबूती से हमेशा बनी रहनी चाहिए. And Jesus, when he says this last statement, and he says that into your hands I commend my spirit. उसने अपने मुंह से इस बात को कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं. शरीर किसी के भी पास जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा किसके पास जा रही है? Where is the spirit going? Jesus knew very well that the spirit will go back to the heavenly Father. यीशु मसीह को बात अच्छे से मालूम थी कि आत्मा परमेश्वर के पास वापस जाएगा. He makes it clear that he is returning back to God, and no power on earth can take that promise away from us. ये जो वायदा, ये जो विश्वास हमें दिया गया विशेष रीति से, ये बात हमसे कोई ले नहीं सकता. But the question is this again: are we confident of all these things that Jesus was confident of? He was confident of who he is. वो इस बात को मजबूती से उसको मालूम था कि वो कौन है. He knew that he is the Son of God, and he knew that who he is. उसको मालूम था कि वो कौन है. He knew where he is going back. उसको ये मालूम था कि अब वो कहाँ जाएगा. He knew to whom he has to be faithful. And this morning, I think we all need to ask ourselves afresh: are we absolutely sure who we are? हम कौन हैं? What is our identity? हमारी पहचान क्या है? क्या इस बात का पूरा हमें भरोसा है? Are we absolutely sure of to whom we belong? हम किसके हैं? क्या इस बात का भरोसा, विश्वास पूर्ण रूप से है? Are we absolutely sure that after we die,
Where are we going to go? That's a very important question. क्या इस बात का हमें पूरा भरोसा है कि जब हमारा जीवन यहाँ खत्म हो जाएगा तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? क्या इस बात का भरोसा हमें है? Jesus knew it, and he has shown us the way to the Father. यीशु मसीह को ये बात मालूम थी और उसने हमें ये रास्ता दिखाया है। उसने हमारे लिए ये रास्ता तैयार किया है कि हम कभी भी भटके ना और क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं। I pray this morning that as we reflect on Good Friday in totality, not just the 7 words, in totality, जब हम Good Friday को पूर्ण रूप से सारी बातों को हमारे दिमाग में पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे पास वीडियोस आते हैं, संदेश आते हैं, so let us boil it down to us. Are we prepared? हम इस बात को यूं समझें, अपने पे अपने जीवन से सीखें, समझें, अपने आप से सवाल करें कि क्या हम तैयार हैं? Jesus knew where he is going. Are we sure where we will be going? Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this very significant day of history where you finally gave your life for us. परमेश्वर, आज का दिन विशेष दिन इतिहास का, जिस दिन आपने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। And Lord, not just the physical life that you gave, but all the different things that you brought to completion for us. ना केवल आपने अपने प्राण दिए, लेकिन वो सारी बातें जो आपने पूरी कर दी हमारे लिए, for the wonderful salvation that you gave, and for the wonderful opportunity that you've given us to accept you as our Lord and Savior. और जो एक अद्भुत मौका आपने हमें दिया है, सबको दिया है, कि हम आपको अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। Help us, Lord, that we will think about this, and we pray, Lord, that your Holy Spirit will work in the hearts and minds of all those who are listening today this morning. प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा सबके दिलों में काम करेगा जो भी इस संदेश को आज सुनते हैं, परमेश्वर, and that you will draw the people to yourself. और प्रभु जी, आप हम सबको अपने नजदीकी में लाएंगे, and Lord, you will refresh in our minds the wonderful promise that awaits for all of us. और प्रभु जी, हमारे दिलो दिमाग में आप तरोताजा कर देंगे वो सारी बातें, वो सारे वायदे जो आपने हमारे लिए बचा के रखे। In Jesus' name we ask.